خصوصی طور پر آج جو ہے وہ آگے اپیل پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ زیادہ تر جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نوجوان ہیں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے سب سے پہلی جو چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے اور نظم و ضبط ہوتا ہے۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، تو آپ کے استاد صاحب جو آپ کو پڑھائیں گے وہ آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھے گا۔ آپ آج اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے مستقبل کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آپ یہاں چند منٹ جو ہے وہ توجہ سے بیٹھ نہیں سکتے، آرام سے بیٹھ نہیں سکتے، کوئی اندر جاتا ہے کوئی باہر آتا ہے۔ قوم غلام کیوں ہوتی ہے؟ قوم غلام اسی وقت ہوتی ہے جنہیں اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا اصل جو ہے وہ ہے کیا، وہ کرتی کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے۔ تو ان کا جب ان کا یہ احساس ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے تو دوسری قومیں آتی ہیں تو وہ ان پر قابل ہو جاتی ہیں۔ کہ قافلہ آدم کو ٹونے والی نگاہوں کا مددگار کرو، ظلم کے پروردہ قوانین کے ایوانوں سے بیڑیاں تکتی ہیں، زنجیر صدا دیتی ہے، مگر عظمت انسان کے سنہرے خوابوں میں کسی تاج کی سطوت کا پرستار نہیں، میرے افکار کا عنوان ارادت تم ہو، میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار نہیں۔ دھرتی ماں کشمیر کے پرعزم نوجوان انقلابی ساتھیوں، وقت بہت بیت چکا ہے، میں لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن 2-3 باتوں کے ساتھ آپ سے گزارش کروں گا کہ عزت مآب یہاں پر تشریف فرما راجہ قیوم صاحب، میں ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہوئے مقبول پڑھ شہید کی اس عظیم جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہوئے چند حقائق آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ہم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس کلچر میں، جس ماحول میں بس رہے ہیں، یہ سچی بات ہے کہ دنیا سے کروڑوں سال ہم پیچھے ہیں۔ میں لیڈروں کا نام نہیں لینا چاہتا جن لیڈروں کے آگے ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، ہمارا یوتھ، ہمارے ہائی کوالیفائڈ لوگ لوٹیاں اور ڈانس کرتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ اتنے جاہل، ڈگر نما، رنڈی باز اور شرابیوں کے آگے ناچتے ہیں۔ شرم کی بات ہے، کوئی بھی جھوٹا، کوئی بھی ان میں سے سچ بولنے والا ایک لیڈر بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے لمحے میں جب رہنما کرپٹ ہوں، ایسے دور میں، ایسے عہد میں جب قوم کے نام نہاد رہنما وہ کرپٹ ہوں، وہ جاہل ہوں، وہ کرپشن کر رہے ہوں، وہ دھوکے باز ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قوم کی، اس سے بڑی وطن کی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے مضمون لکھا ہے راجہ قیوم صاحب، اس میں میں نے برملا لکھا ہے کہ میں نے ان گناہگاروں کو سے آج تک نہ کوئی انسان دیکھا ہے، نہ کوئی مسلمان دیکھا ہے، تو اس پر تنقید ہوئی ہے، بڑی تنقید ہوئی ہے۔ کسی نے کہا وہ مسلمان تھا تو تم نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی صاحب، جب میری ناقص عقل میں مسلمانی کا مطلب ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے نزدیک جو انسانوں کا مطلب ہے، انسان کبھی ظلم کے آگے خاموش نہیں بیٹھتا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ جو کپڑے لگانے والے جانور، یہ شیو کرنے والے جانور، ان کی خصلات اور بیڑیوں کی خصلات ایک جیسی ہیں، تو مجھے لکھنے پر مجبور ہو گیا میں کہ یار یہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں جہاں تو ابھی انسان بننے میں بہت صدیاں درکار ہیں، ہمیں وہ اس طرح کا ماحول بنانے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم گزارنا پڑے گا۔ تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جانوروں میں بستا ہوا ایک انسان ہوں، میں بھی انہی کی طرح ہوں، لیکن اتنا ضرور محسوس کرتا ہوں کہ جس قوم میں مکار رہنماؤں کا لبادہ اڑ جائے، جس قوم میں عقل کے آندھے حکومتوں میں مسلط ہو جائیں، تو شرم کی بات ہے۔ جس طرح راجہ صاحب نے ابھی کہا کہ یار یہ کیسی حکومت ہے، دنیا میں حکمرانی کا مطلب کیا ہے، ان الو کے پٹھوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ وہ رضوان قریشی، وہ زرداری ہاؤس کا ایک ادنا سا ملازم ہے، جس کو گھر ماں بھی لیٹ ہو جائے، گھر لیٹ ہو جائے تو اس کو بیوی بھی دروازہ نہیں کھولتی، اس 2 ٹکے کے رضوان قریشی کے آگے ہمارا وزیر اعظم، جس کو وہ اچھا ہے برا ہے جو بھی ہے، جس کو
तहजीब का रास्ता रोकता है तो हमारे लिए डूब मरने की बात है, हमारे लिए डूब मरने की बात है कि यार शर्म आनी चाहिए मजीद खान तुमको कि तुम एक बगारत कौम के वजीर आजम थे, तुम एक वतन के वजीर आजम थे। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तुम पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत नहीं हो, तुम पाकिस्तान का सूबाई हुकूमत नहीं हो। यार दुनिया में हुकूमत होती है, हुक्मरान अख्तियार होते हैं, तो तुम्हें जरदारी ने इस काबिल भी नहीं समझा कि वो खुद तुम्हें डील करता, तुम्हें गिलानी ने इस काबिल नहीं समझा कि तुम्हें खुद डील करता। उसने अपना अदना मुलाजम रिजवान कुरैशी तुम पर मुसल्लत कर दिया है। यहाँ से गैरत खानी चाहिए और बगावत करनी चाहिए, उठ खड़ा होना चाहिए। देखो इधर कैप्टन सफदर है, वो पंजाब से बैठकर यहाँ जो बड़ा हीरो बना था फारूक हैदर, वो कौमी आज़ादी की बातें करता था, उसको वो कभी उल्टा कान पकड़वाता है, कभी सीधा कान पकड़वाता है। इसी तरह रिजवान कुरैशी हम पर मुसल्लत हो गया है। यार शर्म की बात है, इन लीडरों आज़ाद कश्मीर को गैरत होनी चाहिए कि तुम्हारी औकात ये है। तो वहाँ सिंध के और एक फरियाल तलपुर नामी एक औरत है, वो जरदारी की कोई रिश्तेदार है, उसका क्या काम है? हुकूमत तो आवाम के वोटों से बनती है और वो बाख्तियार होती है, तो वो आकर आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत करती है। हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैं कौम के इन नौजवानों को, इन बेटों को, इन मासूमों को ये आज के प्रोग्राम से ये दर्ज देता हूँ कि जागो, अब भी वक्त है कि इन मुसल्लत शुदा हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करो। मैं उन मौलवियों से भी ये कहता हूँ, यार एक फतवा जारी कर दो कि इन शराबियों को वोट देना जायज़ नहीं है, इन झूठों को वोट देना जायज़ नहीं है, इन बुज़दिलों, मक्कारों और गुंडों को वोट देना जायज़ नहीं है। जो अपने हल्कों में फिरते हैं तो बॉडी गार्ड लेकर फिरते हैं। इतने खौफजदा लोग हमारे हुक्मरान कैसे बन गए, इतने मक्कार और अरियार लोग हमारे हुक्मरान कैसे बने? शर्म की बात है कि हुक्मरान होता है तो इनका जो स्टेटस है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हकीकत है कि ये हुक्मरान नहीं, ये तो किसी चपरासी से, किसी नायब कासिद से भी इज़्ज़त वाला नहीं है। तो आज के जलसे आम में मैं कौम से ये गुजारिश करूँगा, मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा, इस बेइज्जती के माहौल में, इस नफ्सा नफ्सी के माहौल में, इस बेगैरती के माहौल में, यार कोई तो उठो जो गैरत खाओ, कोई तो उठो जो इनको जोड़ो, कोई तो उठो जो उनको बताओ कि तुम हमारे हुक्मरान बनने के अहल नहीं हो, क्योंकि तुम रिजवान कुरैशी से डरते हो, तुम कैप्टन सफदर से डरते हो। एक उठा था मामा आज़ाद कश्मीर का बना, वो मजहब का लबादा ओढ़कर, जाली तस्बीहां तुम्हें पकड़कर, माथों पर महराब लगाकर, कुरान और हदीस की बातें लोगों को करके बेवकूफ़ बनाते रहा। वज़ीर आज़म बना, वज़ीर आज़म बनकर वो बड़ी आज बातें कर रहा था कश्मीर की, वो वादियत की। उस वक्त वो खामोश क्यों था? वो बड़ा मुजरम इन सब में से वो है। आज जब कश्मीरी लुट रहे हैं, आज जब कश्मीरियों की गैरत लुट रही है, आज हम सरे बाजार हमारी गैरत लुट रही है, तो सरदार अतीक खान तुम्हारी गैरत किधर है? तुम में और फारूक हैदर में क्या फ़र्क है? तुम में और मजीद में क्या फ़र्क है? तुम एक दिन बयान रियासती वकार का देते हो, दूसरे दिन जब ISI का हवलदार वहाँ से MI का हवलदार पैर दबाता है तो तुम यू टर्न ले लेते हो। तुम न तो रहनुमा हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई फर्जी और फैशनी बात नहीं है कि इनको उल्लू पट्ठा कहकर, जज्बाती माहौल बनाकर मैं तालियों की दाद देने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारे शर्म से झुक जाते हैं जब हम नजर दौड़ाते हैं तो एक रियासती जमात का सदर सरदार अतीक खान है, उसके किरदार को देखते हैं तो शर्म से आंखें झुक जाती हैं। पीपल्स पार्टी को देखते हैं तो वहाँ के सरबराह को देखते हैं तो हमारे रूहें कांप उठती हैं। जब नून लीग को देखते हैं तो पता लगता है यार ये कैसे लोग हैं जिनके आगे ये लोग, ये नौजवान लुटियाँ डालते हैं। ये कैसे लोग हैं यार? एक सच तो बोलो, एक सच तो बोलो, एक सच बोलने की तुम्हें इजाजत नहीं है तो तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि इस बगारत कौम के, इस बगारत कौम के, इस बाशऊर कौम के, इस गैरत वाली कौम के तुम रहनुमा बनो। मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी वक्त है, आज भी वक्त है। हम लुट रहे हैं, हमारे वसाइल लुट रहे हैं। यहाँ अकल के आंधे, अकल से आ रही वो पता नहीं किस नस्ल के ये लोग हैं जो आकर यहाँ तकरीरें करते हैं और ये कहते हैं कि कश्मीरियों को पाकिस्तान खिला रहा है। यहाँ आकर कहते हैं कि कश्मीरियों की वकालत वो कर रहा है। यार इंडिया और पाकिस्तान
कायबा खाने और शराब खाने चल रहे हैं, उनकी मस्तें स्ट्रांग हो रही हैं, उनके घर रोशन हो रहे हैं, हम लूट रहे हैं, वो नाज और नखरे उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा आका ना पाकिस्तान है ना हिंदुस्तान है। पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जबरन कब्जा किया हुआ है, हिंदुस्तान भी यहाँ पर जबरन काबज है। एक एजेंडे पर दोनों मुल्क मिले हुए हैं। ये तमाम नूरा कुश्तियाँ होती हैं, ये तमाम ड्रामे होते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इंडिया को वो मुस्तरद करते हैं, ये टोटल एक ड्रामा ये दिखाने की बातें होती हैं। ये अंदर से दोनों मिले हुए हैं, स्टील स्टैंड मैदा कर चुके हैं। उनको उसने इजाजत दे दिया है कि तुम भारतीय मकबूजा कश्मीर में अपने पंजे गाड़े रखो, इन कश्मीरियों को उठने नहीं देना है, इन कश्मीरियों को वसाइल नहीं देने हैं, इन कश्मीरियों को आज़ादी नहीं देनी है। तो इसी तरह पाकिस्तान को उसने फ्री हैंड दे रखा है कि तुम यहाँ पर लूटो, यहाँ के वसाइल लूटो। यहाँ के जो लीडर यहाँ पर उछल कर तकरीरें करते हैं, शहीद गुजर साहब यहाँ पर लीडर उछल कर तकरीरें करते हैं, तो गन्ने और तोपे यहाँ के मासूम लोगों को दिखाते हैं, इन खुसरों को, इन हिजड़ों को, इन बेकारों को बरगारे तो वहाँ रिजवान कराची के सामने भी बोले, वहाँ MI के सूबेदार को भी आंखें दिखाएं, वहाँ ISI के सूबेदार को भी कहें यार कि हमारा मुल्क है, हम पड़ोसी मुल्क हैं, तुम हमारे साथ ज्यादती ना करो। ये लफ्ज़ वो नहीं कह सकते, ये वो लफ्ज़ नहीं कह सकते। हम इनकी मजम्मत करते हैं, हम इनकी मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि तुम तो चपरासी बनने के भी काबिल नहीं थे, तुम तो किसी मुल्क में, किसी दफ्तर में नायब कासर बनने के भी काबिल नहीं थे। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम अपोजिशन लीडर बन जाओ, तुम कायद में इसमें इख्तलाफ बन जाओ? तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम कायद इसमें इख्तिदार बन जाओ? तुम तो इस काबिल ही नहीं थे, तुम तो किरदार के साहिब किरदार लोग नहीं हो, तुम तो मकार झूठे बुज़दिल और कमीने लोग हो, और कमीने लोग जब मेरी कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। तो कमीने लोग मेरी मुल्क और कौम पर मुसल्लत हो गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हर जलसे की तरह कि लोगों जागो, हाथ उठाओ, नारा लगाओ, बगावत करो और मुझ और ये फैसल कश्मीरी और कयूम राजा जैसे मासूम मजलूम लोगों को अकेला मत छोड़ो। जब मैं देखता हूँ मैं डिसहार्ट होता हूँ कि यार इन कौम के लिए हम तख्तादार पर हैं, इस कौम के लिए हम हिट लिस्ट पर हैं, इस कौम के लिए आपने अपनी जान को दांव पर लगाया है। लेकिन कौम इतनी बेहिस है कि कौम इतनी बेहिस हो चुकी है कि यार किसको वोट दे रही है। इनकी गुफ्तगू सुनो। मैं शहीद गुजर साहब को कहना चाहता हूँ, मैं नेशनलिस्ट था, एक प्लेटफॉर्म से साइड से गुजरता रहा, मैं सोचता रहा ये तो साहिब अक्ल लोग हैं, मैं सोचता रहा कि ये जो बड़े बड़े लीडर हैं इनको कोई ज़रा मसला अक्ल होगी। जब मैं सहाफ़त की फील्ड में आया, इनके साथ बैठने का मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा यार ये तो उल्लू के पट्टे हैं, इनको तो ये SHO के साथ भी बात नहीं कर सकते, ये तो पढ़ के मारने वाले लोग हैं। ये तो कुत्तू मैं एक लीडर के घर गया, ईद थी, वो बहुत बड़ा लीडर है आज़ाद कश्मीर का, तो मेरे दिल में एक सस्पेंस था कि ये कोई अच्छी बातें करेगा, ये कौम और मुल्क को कोई राह दिखाएगा। तो जब मैंने देखा तो वो अपने ही कारकुन को कहता है ओए फतिया, वो जरा पल्ला कुत्ता तो 2 लाख दासी, वो ध्यान में उसकी तक मिकी शर्म आया कि इस कौम का लीडर है, ये उल्लू का पट्टा इस कौम का लीडर है, जो कुत्तू की बातें करता है, जो गोड़ू की बातें करता है, इसको ना मुल्क का पता है ना कौम का पता है। दूसरे को मैंने देखा, मैंने सोचा ये बड़ा लीडर है, ये पीपल्स पार्टी का लीडर है, तो जब मैंने देखा तो ये तो बुज़दिल आदमी है, इसने तो गनमैन अपने साथ रखे हुए, ये तो बेवकूफ़ आदमी है, इसको सियासत की तो अल्लाह बे का पता नहीं है। मुझे हैरत हुई अपनी कौम पर कि खुदा, मेरे खुदा, ये मेरी कौम ये किन उल्लू के पट्टों को वोट देती है, किन जाहिलों को वोट देती है, किन गुंडों को वोट देती है। मुझे शर्म आई तो मैंने सोचा, मैंने देखा सरदार सगीर खान की जिदोजहद को, मैंने देखा अमानुल्लाह खान की जिदोजहद को, मैंने देखा कयूम राजा की जिदोजहद को। इख्तलाफात सोच से ही किसी बात में इख्तलाफ ही होंगे, लेकिन मैंने देखा कि यार किसी न किसी शक्ल में मुल्क और कौम की बात करने वाले ये लोग हैं, लेकिन ये आवाम किसके आगे लूटी डाल रही है। एक को मैंने देखा ये साफी कोरेटे से हमारे भाई बैठे हुए हैं, महमूद साहब बैठे हुए हैं। एक और मैंने देखा कि वो जलसे में लोग उसके आके लुटियाँ डाल रहे हैं। तो ठीक महीने के बाद यहाँ से एक चंगड़ी को वो अपनी गाड़ी में इशारे कराकर बैठा रहा था, तो वहाँ ले गया। तो मुझे शर्म आई कि
यार ये कैसी कौम है, ये किस उल्लू के पट्टे इस रंडी बास को वोट देती है और इसके आगे लुटियां डालती है। नतीजा क्या निकला? तहरीक तवील चली, लोगों ने जिदोजहद की, क़याम राजा जैसे लोगों ने 22-22 साल जेलें काटी, यहाँ सरफराज कटारिया जैसे लोगों ने मकबूजा कश्मीर में जेलें काटी, विचर तबाह हो गए, जिंदगियाँ तबाह हो गई। लेकिन असल असूल ये है कि 200 आदमी बैठा हुआ है अभी, ये जो इस्लामाबाद के कायबा खानों के रसिया जो वोडका वहाँ पर जाकर पीते हैं, वोडका पीने वालों को आगे यहाँ पर अगर जुलूस उनका होगा तो वहाँ 2000 आदमी खड़ा होगा, यहाँ पर 200 आदमी है। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। हम आज क़याम राजा साहब को, तबारक सैयद एडवोकेट को, फैसल कश्मीरी को, शहजाद मलक को, इश्तियाक मलक यहाँ पर मौजूद हैं, इनको इन सबको ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो काफिला है, ये तन्हा काफिला, ये थोड़ा काफिला कल किसी अवामी इनकलाब में बदलेगा। कल कोई ज़रूर उठेंगे जो इनको ललकारेंगे, इनको कहेंगे। और मैंने उस मज़मून का जिक्र किया था कि मज़मून में जब वो फेसबुक पर एक तनकीदी सिलसिला शुरू हो गया, मुझ पर तनकीद हो गई, तो मैंने कहा यार 45 साल उम्र हो गई है, मैं अल्फन कहता हूँ क़याम राजा साहब, ज़मूर चौधरी साहब यहाँ के बड़े साफ़ी हैं, तैफूर कमरेड साहब बड़ी जदोजहद की, अल्ताफ़ गुलालवी साहब बड़े यहाँ के जाले हैं, बड़े अच्छे साफ़ी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उसको कहा यार मैं पता नहीं पागल हूँ, दीवाना हूँ, क्या हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है कि मैंने आज तक किसी मुफ्त बात पर भी सच बोलते हुए किसी बंदे को नहीं देखा है, नहीं देखा है। अगर सच बोलने वाला एक आदमी भी होता तो यहाँ पर सबको कहता यार तुम अपने वतन के गद्दार हो, मैं तुम्हें वोट नहीं देता। मौलवी मस्जिद में खुतबा देता, तकरीर करता कि यार ये फलां जो MLA के उम्मीदवार हैं ये गद्दार हैं, इनको वोट मत देना। मैंने उनको नहीं देखा। मैंने जब नहीं देखा है तो मैं झूठ किस लिए बोलूं, मैं किस लिए कहूं कि मैंने देखा है। मेरे वालिद साहब मुझे कहते हैं कि कुर्बानी दो बेटा, कुर्बानी सवाब का गौमैत देंगे। मैंने उनको कहा कि ठीक है कुर्बानी देंगे, लेकिन ये जो 1.5 लाख का बैल लेकर यहाँ पर वो ढोल बजाकर नाच रहा है तो लोगों को दिखा रहा है, 1.5 लाख का उसने बैल देखा है, लेकिन मुफ्त में सच बोलना पड़ता है। मैंने उसको मुफ्त में एक सच बोलते हुए जिंदगी में नहीं देखा है, तो इस 1.5 लाख के बैल को नचा कर क्या लेगा। मैं डूंगी से हमारे दोस्त बैठे हैं साथी, उनको बताना चाहता हूँ कि जब हम ये बातें कहते हैं, यहाँ पर निज़ाम है, यहाँ पर रवाज है, कोई छोटा मोटा आदमी कक्ल की बात कहता है तो लोग कहते हैं ये पागल है। कोई बड़ा शराबी चौधरी, कोई बड़ा शराबी राजपूत, कोई बड़ा शराबी मलक जब कहता है, जिसने गुंडे गाँव में मल्लों में गुंडे रखे हुए हैं, जो नौजवानों को उठता देखते हैं तो उनको बिला वजह चोरी के केसों में फंसा देते हैं। जब वो उल्लू का पट्टा वो बहुत बड़ी जाहिलाना बात करता है तो लोग कहते हैं मलक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। मुझे हैरत होती है और मुझे खौफ भी कभी कभी आता है। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे खौफ आता है कि यार जब ये सब झूठे मिलते हैं तो एक सच्चे को माशरे में झूठा तस्लीम करवा देते हैं, यानी वो प्रूव हो जाता है कि ये झूठा है, सब झूठे। मैंने अपनी आंखों से, वो नाम याद नहीं है ज़मूर चौधरी साहब उस बंधु के, मुझे मैंने आंखों से देखे कि वो गांव में मशहूर है कि ये पागल है, सुदाई हैं। जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो मुझे ऐसा लगा ये तो बड़े अक्लमंद लोग हैं, बड़े ज़ीरक लोग हैं, लेकिन मैं अगर ढोल बजा कर भी ये कहूँगा कि ये अक्लमंद लोग हैं तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जब मशहूर अक्लमंद गाँव में मशहूर है, उन्होंने ये मशहूर कर दिया है कि ये बेवकूफ़ है, ये पागल है। यहाँ पर अक्लमंद आदमी को पागल लोग करार नहीं देते, पागल लोग कहते नहीं हैं, पागल साबित करवा देते हैं। यहाँ इतनी खौफनाक पोजीशन है, इतनी खौफनाक पोजीशन है कि ये जब बड़े बड़े 3 पीस सूटों वाले, ये क्लीन शेवों वाले, ये बड़े बड़े बर्दाश्तों पर बैठे हुए सब जुटे हैं। इस तकरीर में ये बात मुझे को कोर्ट कटारे में लेकर चला जाए, मुझे किसी अदालत में लेकर चला जाए तो मैं साबित करूँगा, मैं लॉजिकली साबित करूँगा कि इन जो लीडर हैं इनसे जंगल का भेड़िया 7 दर्जे बेहतर है। मैं प्रूफ करके बताऊँगा, आई कैन प्रूव इट। मेरे पास कुछ 250 दलाइल मौजूद है कि मैं बताऊँगा कि ये जो लीडर है इनसे भेड़िया कैसा बेकरदार है, भेड़िया भूखा है, जंगल में जाता है, शिकार मारता है, खाकर या सो जाता है,
से खेलना शुरू कर देता है। हमारे ये रहनुमा अरबपति हैं, लेकिन इनके दिल से आवाज़ आज भी नहीं निकली। आज भी मुतराज़ा जगहों पर जाते हैं, मुतराज़ा जगहों में जाकर रोड देकर वो करोड़ों की ज़मीन औने पौने दोनों में खरीद लेते हैं। आज भी दोनों वकील और जज तीनों मिले हुए होते हैं। तो 12 साल के बाद उस मजलूम मकतूल के वर्सा को पता लगता है कि काश मैं वकील को करने के बजाय जज कर लिया होता। जब ये मजमून मैंने लिखा तो मुझे तौहीन अदालत का नोटिस आ गया। तो मैं जज साहब को पहले मिला, मैंने कहा जज साहब ये बात मुझे ठीक है, खौफ नहीं है अदालत का, आजकल थोड़ा सा मैं मसलत का थोड़ी सी मैंने मुनाफत शुरू कर दी है। 5 साल पहले मैं बिल्कुल मुनाफत नहीं करता था। तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब मुझे अदालत का सज़ा का खौफ तो नहीं है, लेकिन ये मैं साबित कर दूंगा यहाँ पर कि ये ठीक लिखा हुआ है। उस मजलूम ने ठीक कहा है कि काश मैं वकील के बजाय जज कर लिया होता। अलमिया ये है कि जो पीपल्स पार्टी का टाउट होता है वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वजीर वो जज बन जाता है। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टाउट होता है, एक में महफल ये ज़मूर चौधरी साहब ने एक बहुत बड़े लीडरों की महफल में बैठा हुआ था, वहाँ पर मैंने खुद लिखा है, खुद सुना है अपने कानों से। एक बहुत बड़ा सीरियस किस्म का मैटर था, बहुत सीरियस किस्म की बात थी। तो उन्होंने ये कहा वहाँ पर कि भाई ये 4 साल की बच्ची लगेगी तो ये आपका काम हो जाएगा। मुझे हैरत हुई यार, ये क्या कह रहा है कि लोग पुराने वक्तों में कहते थे कि बकरा कुर्बानी लगेगा तो काम हो जाएगा, आपकी दुआ पूरी हो जाएगी, बैल कुर्बानी लगेगा तो बात पूरी हो जाएगी। मुझे कोई 6 महीने के बाद समझ आई कि ये उल्लू का पट्टा जिस जज के लिए उसकी औकात बता रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। तो मैं डर गया कि यार मैं अगर इसी तरह स्ट्रगल करता रहा तो ये सब चोर से सब लुटेरे मैं किसी जेल की काल कोठरी में बिठा देंगे। एक मीरपुर से मैं ये चूँकि बात का डर कर ये बात नहीं कहना चाहता कि यहाँ जंगली जो माहौल है, बड़ा खौफनाक माहौल है, तो वो लोग वो उल्टी को मेरे खाते में बात डाल देंगे। इसलिए मैं बात को बात का गोल करके कह देता हूँ, क्योंकि मैं इतना भी बेखौफ नहीं हूँ। थोड़ा मुझ माशरे में जीने के लिए ऑक्सीजन मुझे भी दरकार है, तो मुनाफत का लबादा हम भी कभी ओढ़ लेते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि यहाँ पर इन जीने के लिए थोड़ा कुछ ज़िगज़ैग करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। लेकिन आज आप अपने मुझे यकीन दिला दें कि इतने बंदे मेरी पुष्ट पर मौजूद हैं, तो खुदा की कसम मैं इनको आवानों में जाकर इनके गर्बान में हाथ लाकर घसीट का साथ कर सकता हूँ। लेकिन मैं अकेला हूँ। जब मैंने जिद्दोजहद की, मैं पुलिस की मारे खाई, मैं निकला, मैं दीवाना था, मैं जुनूनी था, मैं पागल था, मैं निकलता रहा। तो जब मैंने देखा जो मेरे काफिले में थे, जो मेरी तकरीर पर बाद में मुझे थपकियाँ दे रहे थे, मुझे थपकियाँ देकर वो कह रहे थे जी बड़ी अच्छी तकरीर की है। जब बुरान आया, छोटा मोटा बुरान आया, तो उनको मैंने मुखालिफ कैंप में बैठे हुए देखा। अगर यहाँ पर तबारक सैयद साहब होते तो शेर बयान करके वो बात कह देते, लेकिन शेर इस मौजू पर मुझे याद नहीं था कि उनको वो जो मेरी फौज के सिपाही थे, मैंने उनको मुखालिफों के कैंपों में बैठे देखा, मैंने क्या उनका ईंधन बनते हुए देखा। तो मुझे और खौफ आया, यार मैं जिस फौज के सर पर इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, ये तो फौज ये कुत्ती चोरों से मिली हुई है, ये मुखालिफ ग्रुप की जो एजेंट है। फिर मैं यहाँ पर तो कल कह रहा था कि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, ये आधे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, आधे मलिक यूसुफ के लोग हैं। तो मुझे हैरत हुई यार, ये झंडे तो उन्होंने नेशनलिस्टों के उठाए हुए, तो ये क्या कहते हैं। लेकिन ये साबित हो गया कि इलेक्शन में इन्होंने जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिए उनके हवाले से बात हो रही है। तो लंबी बात में नहीं करना चाहता, अगर एक आदमी भी इसमें नाम से उठता तो मैं तकरीर छोड़ देता। लेकिन मैंने देखा है कि 4, 5, 6, 10 का इजाफा हुआ है, इसलिए मैंने बात अभी थोड़ी देर के बाद दुआ खैर होगी, यहाँ लंगर भी तकसीम होगा। तो मेरी ये आदत है कि जुल्म जबर हो, कहर हो, तबाही हो, तूफान हो, मैं डरते हुए या मुनाफत से जो भी करूँगा किसी न किसी शक्ल में मैं वो सच्ची बात वहाँ कहने की कोशिश करूँगा। मैं कहता रहता हूँ, आज तो 200 आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो मैं आखिरी बात समेटते हुए, दोस्तों करप्शन का दौर हो रहा है, लूट खसूट का दौर हो रहा है, चोर हुक्मरान और रहनुमा हैं, करप्ट लोग मसीहा का रूप धारे हुए हैं, लोगों के हकूक लूटने वाले यहाँ पर मसीहा साबित हुए हैं। और अवाम को ये समझती है कि हमारे मज़हब जो गुजर लीडर, जो गुजर मजदूर वहाँ से भी और इंग्लैंड से
अपने किसी गुजर लीडर को पैसे भेजते हैं कि ये सियासत कर रहा है, तो उस दुबई के मजदूर को जब पता लग जाए कि इस गुजर लीडर ने हमारी वो मजदूरी की कमाई कहाँ पर खर्च की है, इसी तरह उस राजे मजदूर को जब पता लग जाए कि मैंने राजपूत इज़्म पर जो पैसे अपने राजपूत लीडर को भेजे थे, उसने वो पैसे इस्लामाबाद में किस खाना में खर्च किए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि यही पत्थर उठाएंगे और इनको भगा भगा कर दम लेंगे। मैं शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, शहीद साहब ज़ुमर साहब एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं सही और सच्ची बातें कर रहा था, मैं दुरुस्त सिमत में बातें कर रहा था, इतनी वो कड़वी भी नहीं थी। तो यहाँ का एक बहुत बड़ा लीडर उठता है, वो मुझे मुस्कुराहट करता है, लेकिन उस पंडाल में 200 के पंडाल में सिर्फ 2 आदमी, ये कुजम राजा साहब, उस खालिद इब्राहिम को मैंने अपनी सपोर्ट में एक जुमला कहते हुए सुना है। बाकी सब वहाँ लग रहा था या एजड़े हैं या अक्ल से आ रही हैं। एक तो ऐसे कमीने थे, उनको पता भी था कि ये बात इसने ठीक कही है, लेकिन उस ताकतवर को खुश करने के लिए उन्होंने वहाँ स्टेज पर मेरी बात को मुस्कुराहट किया और मेरी बात को मुस्कुराहट किया और उसकी हमायत की। तो आज इस मुक़द्दस प्लेटफार्म से मैं ये अज़म और यकीन के साथ आपको कहता हूँ कि वो वक्त आने वाला है जब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जागेंगे, जब रियासत जम्मू कश्मीर के सारी अकाइयों से लोग जागेंगे। और ये यहाँ पर एजेंसियाँ ये बात नोट कर लें, हर दफ़ा वो बागियाना अंदाज की बागियाना बातें नोट करते हैं, लेकिन आज ये मैं इस गौर अंदाज में बात कर रहा हूँ कि यार जो पाकिस्तान महाल लोग हैं, जो पाकिस्तानियों को ये दर्स देते हैं कि कश्मीर को तुम कब्जे में रखो, उनको ये कोई दर्स नहीं देता कि कश्मीर में अक्सरियत मुसलमानों की है, ये अलग मुल्क बन जाएंगे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये तुम्हारी ढाल और तुम्हारी सरहद पर फिर भी चौकीदारी करते रहेंगे, इनको को क्रॉस करके तुम तक नहीं पहुंचेगा। इनकी को तोप, इनको को गन इस्लामिज़्म की वजह से तुम्हारे खिलाफ नहीं उठेगी। तुम इनको राइट्स दे दो, तुम इनको हकूक दे दो, तुम इनके दिल जीत लो, तुम इनके दिल जीत लो, तुम इनके दिलों में जगह बना लो। तुम ताकत के जोर पर, तुम ताकत के जोर पर, तुम अपने जो टोटू के जोर पर, अपने मुसल्लत करदा लोगों के जोर पर यहाँ पर तसल्लुत कायम रखना चाहोगे तो ये दिल से तुम्हारा एहतराम नहीं करेंगे, ये दिल से तुम्हारे मुखालिफ होंगे। तो जो चाहे तुम्हारे तलवे चाटे हैं, वो किसी मतलब के लिए तो चाट रहे हैं, वो दिल से तुम्हें तस्लीम नहीं करते, वो दिल से रिजवान क़ुरैशी को तस्लीम नहीं करते, बल्कि एक नफरत है जो उनके खिलाफ पनप रही है, एक नफरत है जो उनके खिलाफ जा रही है। लोग कहते हैं सुसाइड बमिंग गलत है, ठीक है दहशतगर्दी गलत है, लेकिन उन्हें ये देखना होगा, उन्हें ये महसूस करना होगा कि ये सुसाइड बमर बना है, इसके पीछे हालात क्या थे, इसके वजह वाक़यात क्या थे, किस हुकूमत ने कहाँ पर उसके ऊपर डाका डाला था, किसने उसका हक लूटा था, तो वो जाकर सुसाइड बमर बना है। तो देखना ये है, कहने की बात ये है कि जबर से दोस्ती और मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। तो पाकिस्तान साहब, वो पाकिस्तान साहब, आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो, हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, तो तुम ताकत से नफरत से कश्मीरी की मोहब्बत नहीं खरीद सकते। नफरत का तोड़ मोहब्बत है, जब तुम इस कौम से मोहब्बत करोगे, इनको इसके हकूक दोगे, तो ये तुम्हारा दस्तों बाजू बन जाएगी। फिर कश्मीरी थोड़े से अक्लमंद भी हैं, थोड़े से पुरअमन भी हैं, और याद रखो कि किसी मुल्क के खिलाफ गन उठाने के लिए तैयार नहीं है, या किसी मुल्क के किसी मासूम को कत्ल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा जो अकीदा है, मेरा जो ईमान है, मेरा जो नजरिया है कि मैं हिंदू माँ की कोख उजाड़कर किसी आज़ादी की तहरीक की हिमायत नहीं कर सकता। मैं किसी सिख बहन का सुहाग उजाड़कर मैं किसी आज़ादी को लेने के लिए तैयार नहीं। मैं किसी पंडित बेटे को यतीम करके अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के हक में नहीं हूँ। आज़ादी लोगों के लिए ली जाती है, और लोग जो कश्मीर में बसते हैं, वो खा हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे दस्तों बाजू हैं। फिर मैं एक बात पड़ोसी ममालिक के लिए ये कहना चाहता हूँ, यार मुसलमान तो यहाँ पर 300-400 साल पहले लोग बने हैं, ये एक ही नस्ल के लोग हैं, हिंदुस्तान वाले और पाकिस्तान वाले, इनका जद अमजद एक है। इनका अगर DNA करवाया जाए तो इनका एक ही है सब कुछ आधे मुसलमान हो गए, कुछ आधे हिंदू हो गए हैं। तो खुदारा अकल से काम लो, तुम्हारा सर्वाइवल का एक ही हल है कि तुम रीयूनिफिकेशन ऑफ सब कंटिनेंट की तरफ जाओ, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लिए काम करो, साफ बॉर्डर बना दो, इंडिया को तस्लीम कर लो, वो तुम्हें तस्लीम कर ले, तो तुम्हारे सर्वाइवल का एक ही हाल बचता है। जो 500 आदमी जो पाकिस्तान का बना याफ्ता है, वो
نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کر سکے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اسٹیٹ ڈائریکشن پر جا سکے، کیونکہ جب پاکستان میں کوئی عقل مند بندہ آ جائے گا، کوئی اچھی پالیسی بن جائے گی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے گی، تو ان کی دال روٹی اور آٹیاں بھی بند ہو جائیں گی۔ جنگ کسی ملک کے مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگیں تباہی کا پیغام لاتی ہیں، جنگوں سے آج تک کوئی منزل حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ تو پاکستان جو پڑوسی ملک ہے، اس کی عوام سے ہماری محبت ہے، اس کی عوام کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اس کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں۔ ہم آج یہاں پنڈال سے ان کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ جنگ و جدل کا ماحول جو لوگ بنا رہے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے بنا رہے ہیں، جنہوں نے بلوچستان میں جا کر بلوچی کی نسل کشی کی، 50 سال بعد 100 سال بعد بھی جو بلوچی پیدا ہوگا وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہوگا۔ تو جس نے یہ بیج بویا، جس نے یہ ماحول بنایا، وہ پاکستان کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اور ایک شہید چوک میں ایک کوٹلی جے کے سپورٹس کمپلیکس کے باہر کچھ جوانے لوگ ہیں جو تمہاری بقا کی باتیں کر رہے ہیں، تمہارے بچاؤ کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں، وہ وفادار ہیں۔ جو تمہیں تمہاری تباہی کا درد دکھا رہے ہیں، وہ وفادار ہیں۔ تو میں NLC کے منشور جو کہ PNP کے منشور پر آخری بات کہتے ہوئے چل جاؤں گا۔ یہ وہ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے جو ڈائریکشن دی ہے، جو قوم کو صراط مستقیم دکھایا ہے، اس کے بغیر کوئی آزادی کا حل نہیں ہے۔ اگر وہ خود مختاری کا نعرہ ہے تو صرف خود مختاری کے حد تک محدود رہے، تو اس میں منظر موجود نہیں ہے۔ جب آپ ایک نظام دیں گے، جب ایک مینیفیسٹو دیں گے، جب ایک طریقہ کار بتائیں گے، جب آپ کشمیر کی 7 ریاستوں کے حقوق کی بات کریں گے، تو جو کشمیر ہے اس کی 7 ریاستیں ہیں، اور 7 کی اصلیت کو، ان کی تقدس کو، ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا پڑے گا جب تک کشمیر بسنے والے ہندوؤں اور پنڈتوں اور سکھوں کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا پڑے گا۔ اس وقت تک کشمیر کی آزادی کا بھی کوئی اثر رسوخ نہیں ہے۔ تو ہمارا منشور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف عرب ایمریٹس کی طرز پر ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر ہوگا، اور اس میں ایک وفاق ہوگا، اور وہ اس کے زیر انتظام کشمیر کی تمام ریاستیں اپنے اپنے معاملات میں آزاد ہوگی۔ تو میں یہاں پر قوم پرست ساتھی میرے بھائی اسناد راجہ، امید سردار اور یہ جو لوگ آئے ہیں اور یہ اعجاز صاحب آئے ہیں، میں ان کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے بہت ویل وشر ہیں، اور ہمارے سب دوستوں کے لیے ویل وشر ہیں۔ تو یہاں پر یکجہتی کے لیے آئے، تو ہم بھی ان کے ساتھ یکجہتی کہتے ہیں۔ تو بعد میں کلوز فیصل صاحب چاہتے ہیں کہ جلسہ کلوز کیا جائے، میں آخری مقرر ہوں، آخری مقرر کے بعد پنڈال خالی ہو جاتا ہے، لیکن اگر فیصل صاحب اس نے اتفاق ہے کہ آپ کا پنڈال خالی نہیں ہوا ہے، تو لوگ باتیں سننا چاہتے ہیں، تیمور صاحب سننا چاہتے ہیں، تو مجھے 4 باتیں آپ کہنے دیں، آج میں تھکا بھی نہیں ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں شاید یہ 2 لاکھ کسی کے کام آ جائیں، شاید یہ بات ان کے کام آ جائے کہ جب تک ہم جاگیں گے نہیں، جب تک ہم شعوری سطح پر انقلاب کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے۔ دیکھیں، ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میں گاؤں سے گزر رہا تھا، تو گجم راجہ صاحب وہاں پر بڑے ڈھول ہار اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے یا کوئی بہت بڑا افسر بن گیا تو یہاں پر میلہ لگا ہوا ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا جی فلانے چیئرمین صاحب کا بیٹے کا انگلینڈ کا ویزا ہو گیا جا رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار یہ کتنے پاگل لوگ ہیں، اس کے لڑکے نے ایم اے کیا ہوا ہے، LLB کیا ہوا، تو یہ انگلینڈ جا کر برتن صاف کرے گا تو جو خوش ہے۔ میں نے ان کو کہا یار افسوس کرو، یار ماتم کرو کہ اگر آپ کا ملک آزاد ہوتا، یہ مسٹنڈے، یہ نو سرپاز، یہ رنڈی باز، یہ شرابی آپ پہ مسلط نہ ہوتے، تو آج یہاں پر فیکٹریاں ہوتی، جہاں پر وسائل ہوتے، جہاں پر روزگار ہوتا، تو تمہارا بیٹا وہاں پر جا کر انگلینڈ میں برتن صاف کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تم شرم کرو، غیرت کرو اور افسوس کرو، تم یہاں پر جشن منا رہے ہو۔ اس ایگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر مایوسی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے کہ سید گجر صاحب ہمارا یہاں سے نوجوان شادی کرتا ہے، 2001 میں شادی کرتا ہے، 2004 میں واپس آتا ہے، 2004 میں 1 مہینہ رہ کر پھر چلا جاتا ہے۔ جب ہم جمع تفریق کرتے ہیں تو اس کی 40 سالہ ازدواجی زندگی میں وہ اور اس کی بیوی صرف 2 سال اکٹھے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فطرت نے ہمیں جو حق دیا تھا، یہ جو فطرت نے ہمیں آسودگی دی تھی، وہ فطرت کی آسودگی بھی ہم سے غلامی نے چھین رکھی ہے۔ کاش ہم آزاد ہوتے، ہمارے پاس وسائل ہوتے، جس بچے کو باپ کی شفقت کی ضرورت ہے، اس کا بچہ وہاں کیلا خانوں میں، وہاں فیکٹریوں میں کیلے پیک کر رہا ہے، تو اس بچے کو شفقت کون دے گا؟ یہ غلامی نے، اس نظام نے، اس کرپشن کی وجہ سے وہاں پر وہ مجبور ہے۔ کوٹ تو آ رہے ہیں لیکن ذلت ہمارا مقدر ہے۔ تو میں
اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چلنے لگا ہوں کہ اب بھی وقت ہے لوگوں جاگو، اب بھی وقت ہے لوگوں جاگو، ان چوروں کے مخالف جاگو۔ اب یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ ویسے آ گئی ہے بات۔ لوگوں جاگو، ان چوروں کے مخالف جاگو، ان لٹیروں کے مخالف جاگو، یارو ان قیوم راجہ کے حق میں جاگو، ان منافقوں کو جو گاؤں میں طلاقیں دلواتے ہیں، جو ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں سید گجر صاحب، یہ لیڈر کیسے بنتے ہیں؟ یہ آستاب پستہ گھر جاڑ دیتے ہیں، بہو کو کچھ کہتے ہیں، اس کی ساس کو کچھ کہتے ہیں، دونوں کے درمیان اختلاف ڈلواتے ہیں، پھر دونوں سے پرچے کرواتے ہیں۔ یہ تو ایسے لیڈر ہیں جو اغوا ہوتا ہے لڑکی کو اغوا کرواتے ہیں، وہ اس محبوب کو یہ دست دیتے ہیں کہ یار تمہیں رشتہ نہیں دے رہا، تم اس لڑکی کو لے کر چلے جاؤ، اس کو اکساتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو لے کر چلے جاؤ، تمہارا حق بنتا ہے۔ لیکن ٹھیک گھنٹے کے بعد اس لڑکی کے وارثوں سے FIR درج کرواتے ہیں، یہ لیڈر ہیں، ادھر سے اس کو کہتے ہیں کہ تم گانا نکال کر لے جاؤ، ادھر سے اس کے والدین کو، لڑکی کے والدین سے پرچہ کٹواتے ہیں، دونوں کو جوتے مارتے ہیں، دونوں سے پیسے خرچ کرواتے ہیں، اور پھر دونوں کا رضینامہ کرواتے ہیں، اور پھر یہ لیڈر ایسے بنتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا مجھے کہ یار میں ووٹ نہیں دینا چاہتا، ان چوروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، میرا ضمیر نہیں مانتا، تو میں پولنگ اسٹیشن میں زندگی میں صرف ایک دفعہ گیا ہوں، وہ اسی وقت کا واقعہ ہے، اس کے میں نے نشان دیتا ہوں ایک بار۔ تو میں نے پوچھا یار تم کہہ رہے تھے میں ووٹ نہیں دینا ہے، تم نے یہ ووٹ فلاں آدمی کو کیوں دیا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ اگر میں ووٹ نہ دوں تو کل ہو سکتا ہے کسی یہ جھوٹے مقدمے میں مجھے پھنسا دے گا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا ہے۔ تو یہ دوست نے جو تجویز ایک چیز بھیجی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے، تو اس میں بھی غلامی وجہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر اور انڈین مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے جو پروڈکٹس جاتی ہیں اس پر کوئی ٹیکس وغیرہ لیا جاتا ہے، تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایک ملک سے جب مال دوسرے ملک میں اسی ملک کے کسی دوسرے حصے میں جاتا ہے تو وہ ٹیکس والی بات کوئی نظام یا اس طرح کا رواج نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ہر کام الٹا ہو رہا ہے، یہاں پاگل کو لوگ لیڈر مانتے ہیں، جہاں پر جو تھانے میں جا کر پھڑ کے لوگ مرتے ہیں لیڈر اس کو لیڈر مان لیتے ہیں، جہاں پر جو لوگوں کو قتل کروانے اور باڈی گارڈ ساتھ رکھتے ہیں ان کو لیڈر مانتے ہیں۔ تو ایسے میں ٹیکس والی بات پر بھی سردار رائے صاحب حیرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ جیسے نوجوان اٹھیں گے، انقلاب کی راہیں ہموار ہوں گی۔ جب تک ایک سوشلسٹ انقلاب کے لیے آپ کام نہیں کریں گے، جب آپ گروئی نسلی اور جو قبیلائی تصبات ہیں اسے بالاتار ہو کر ایک جڑت پیدا نہیں کریں گے، پوری دنیا کی جو تحریکیں ان کے ساتھ جڑیں گے نہیں، جاگیں گے نہیں، تھوڑا مشتعل نہیں دیں گے، اس وقت تک منزل نہیں ملے گی۔ فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، فقط جن کی بنیادیں جھوٹ پر مبنی ہیں، ہم نے وہ گنبد گرانے کی قسم کھائی ہے۔ بہت اچھے جی ملک صاحب۔ اور 2 فروری کو